Good morning, my dear students. Today topic start now. Nature of CX bond in haloalkanes. Nature of CX bond in haloalkanes. Nature of CX bond in haloalkanes. Okay. CX bond is formed by overlapping of sp3 hybridized orbital. CX bond is formed by overlapping of sp3 hybridized orbital. sp3 hybridized orbital of carbon atom. sp3 hybridized orbital of carbon atom. CX bond is formed by overlapping of sp3 hybridized orbital of carbon atoms and 3p orbital of chlorine and 3p orbital of chlorine. So overlapping sp3 and p. Overlapping sp3 and p. These overlapping can be shown as follow. Carbon sp3 hybridized, carbon orbital, 1 orbital, 2, 3 and 4. Total orbital 4. sp3 hybridization of carbon. X क्लोरीन p ब्लॉक एलिमेंट्स है. सो p ब्लॉक ऑर्बिटल्स 3p ऑर्बिटल्स 2p FCl 3p ऑर्बिटल्स क्लोरीन 3p ऑर्बिटल्स एंड sp3 hybridization orbitals. Orbital diagram of CH3X or CH3X means halogen chlorine. CH3 CH3 total hydrogen 3, 1 hydrogen, 2 hydrogen and 3 hydrogen, 1 hydrogen, 2 hydrogen and 3 hydrogen, 3 hydrogen and chlorine p orbitals. Overlapping of sp3 and p. sp3 hybridized orbital sp3 and p orbital. तो s overlapping of sp3 and p. Electron density increase, electron density increase, electron density increase, electron density increase. तो आपके पास ऑर्बिटल आ गया. किसका? मोलिकुलर ऑर्बिटल. किसका? मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CH3Cl. मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CH3Cl. मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ CH3Cl ये RBSc 2018 के अंदर पूछ चुका है एग्जाम के अंदर. CH3 C टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3, C टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3, H एंड X हेलोजन Cl 3p ऑर्बिटल में आता है. तो ये 3p ऑर्बिटल Cl ऑर्बिटल. sp3 एंड p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करके और किसका फॉर्मेशन करते हैं? CH3Cl. sp3p और sp3 एंड p ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे. सो मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ डायग्राम ऑफ CH3Cl. ये आपके पास मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम आ गया है. किसका? CH3Cl का. ओके. नेक्स्ट CX बॉन्ड CH3 and X CX. Although CX bond is covalent bond. CX bond is covalent bond.
CX bond is a covalent bond. But electronegativity of carbon atom 2.6 is very less than halogen atom. 2.6 is very less than halogen atoms. Electronegativity of carbon atoms 2.6 very less electronegativity of halogen. Therefore, due to the difference is electronegativity. Due to the difference of electronegativity. Due to the difference is electronegativity. CX bond is polar. CX bond is polar in nature. CX bond in polar in nature. By this way, partially negative charge appears to halogen atoms and partially positive charge on carbon atoms. Partially negative charge, more electronegativity और less electronegativity. हेलोजन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन एटम्स के रेस्पेक्ट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी. 100 इलेक्ट्रॉन मूव करेगा किस साइड के अंदर, हेलोजन एटम की साइड में. तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही शिफ्ट हो जाएगा हेलोजन की साइड में, तो हेलोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी. सो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज. एंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज. तो इस टाइप से CX बॉन्ड एक पोलर बॉन्ड हो जाएगा. CX बॉन्ड कैसा बॉन्ड हो जाएगा, पोलर बॉन्ड हो जाएगा. CX बॉन्ड क्या हो जाएगा, पोलर बॉन्ड हो जाएगा. ऑल्दो CX बॉन्ड इज ए कोवलेंट बॉन्ड बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम्स वेरी लेस देन हेलोजन एटम. देयरफॉर ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी CX बॉन्ड इज ए पोलर इन नेचर. बाय दिस वे पार्शियली नेगेटिव चार्ज appears on halogen atoms and partially positive charge on carbon atoms. Okay, next. Order of polarity. Order of polarity. Order of polarity. Order of polarity. CH3Cl, CH3Br, CH3I. Order of polarity CH3Cl, CH3Br and CH3I. So concept polarity is directly proportional electronegativity. Polarity is directly proportional electronegativity. So more electronegativity in these compounds, so polarity increase. CH3 and CH3 same, but Cl, Br and I के अंदर क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव. ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन मैक्सिमम, Br मिनिमम एंड I वेरी वेरी मिनिमम. क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है ब्रोमीन एंड आयोडीन से. सो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अधिक क्या करेगा, अपनी तरफ एक्सेप्ट करेगा. तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम हो जाएंगे. तो पोलैरिटी भी क्या हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम हो जाएगी. तो ऑर्डर आ जाएगा इसका CH3Cl हायर पोलर बॉन्ड देन CH3Br लेस देन CH3I. ये आपके पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा. ओके, आगे नेक्स्ट पॉइंट आपके पास स्टार्ट करता हूँ बेटा मैं. नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट नाउ. मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स. फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन्स. फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन्स. फर्स्ट है आपके पास है फ्रॉम एल्केन्स. Methanes react with from alkanes. Methane react with chlorine in presence of sunlight. Methane react with chlorine
in presence of sunlight, then give to CH3Cl, then give to CH3Cl प्लस में HCl प्लस HCl, CH2Cl2 एंड H। आपको पता है कि जब फोटोन की प्रेजेंस में मीथेन की रिएक्शन हेलोजन के साथ होती है तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी तो कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन प्लस Cl एंड Cl, और ये आपके पास आ गया फोटोन। ओके, ये आपके पास आ गया फोटोन। तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, तो क्लोरीन के ऊपर ये फ्री रेडिकल और इस क्लोरीन के ऊपर भी ये क्या आ गया, फ्री रेडिकल। इसी टाइप से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल एंड कार्बन के ऊपर भी फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल एंड फ्री रेडिकल यहाँ से तो आउट हो जाएगा HCl, और ये फ्री रेडिकल जाके इससे जाके क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा CH एंड Cl। ये हो जाएगा आपके पास CH3Cl प्लस में, और आपके पास हो जाएगा HCl। ओके, दिस मेथड इज मोर यूजफुल फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। This method is more useful for industrial purpose. Next method, by addition of hydrogenation halide on alkene. By addition of hydrogenation, second है by addition of hydrogen halide on alkene. By addition of hydrogenation on alkene, by addition of hydrogenation halide on alkene. Okay, so alkyl halide are obtained by electrophilic addition reaction. Alkyl halide are obtained by electrophilic addition reaction. So RCH double bond CH2 alkene double bond RCH2 CH2, these compounds is alkenes compounds react with the RCH double bond CH2 react with the HX, then obtained of RCH double bond CH2. तो alkyl halides are obtained, alkyl halides are CHX CH3, alkyl halide are obtained by electrophilic addition reaction. Alkyl halide are obtained by electrophilic addition reaction of alkenes with hydrogen halide. Alkyl halides are obtained by electrophilic addition reaction of alkenes with hydrogen halide according to Markovnikov rule. According to Markovnikov rules. RCH double bond CH2 alkene react with hydrogen halide then give to alkyl halide. तो एल्कीन जब रिएक्ट करेगा HX से कौन सी रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होगी। जैसे ही मार्कोनिकोव रूल लगाएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। सो एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल RCR डबल बॉन्ड CH2 react with HCl hydrogen halide, RC double bond CH, these compounds alkene compounds, hydrogen halide compounds, electrophilic addition reaction। सो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से यहाँ पर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव एंड क्लोरीन पार्शियली नेगेटिव। तो क्लोरीन तो कहाँ जाके कनेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव के ऊपर यहाँ पर, और क्लोरीन कहाँ जाके कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर। तो कौन सी रिएक्शन हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो RCR सिंगल बॉन्ड CH2
एंड हाइड्रोजन तो आपके पास हो जाएगा CH3 R और यहाँ पर हो जाएगा CH3 और इस जगह क्या आ जाएगा आपके पास Cl। मार्कोनिकोव रूल क्या है वो देखिए बेटा, RCr डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट विद HCl। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल हाइड्रोजन उस जगह जाएगा जहां उस डबल बॉन्ड के ऊपर पहले से ही हाइड्रोजन मैक्सिमम है। उस एल्किन्स के ऊपर हाइड्रोजन उस जगह अटैक करेगा जिसमें पहले से ही हाइड्रोजन उस एल्किन के ऊपर मैक्सिमम है। तो इस कार्बन और इस कार्बन के ऊपर चेक करें कि हाइड्रोजन मैक्सिमम किसके ऊपर है। तो आपको पता है कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन भी नहीं है। इसका मतलब आने वाला हाइड्रोजन कौन सी जगह अटैक करेगा, इस जगह। और क्लोरीन कहाँ जाके शिफ्ट होगा, जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पर कर दो RC, क्लोरीन तो इस जगह चला जाएगा तो Cl, ये सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा CH और ये 2 और एक हाइड्रोजन और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा CH3 और एंड R। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है एल्किन से एल्किल हैलाइड के फॉर्मेशन का मेथड है ये। एल्किन से एल्किल हैलाइड के फॉर्मेशन का क्या है आपके पास मेथड है। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH एंड CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH एंड CH3 react with HBr alkene react with hydrogen bromide then give to। देखिए रिएक्शन कैसी होगी वो चेक करना है। हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, हाइड्रोजन उस जगह जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन पहले से ही ज़्यादा हो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। तो यहाँ पर ये एल्किन्स हो गया आपके पास, कार्बन डबल बॉन्ड CH ये एल्किन ग्रुप हो गया। तो यहाँ चेक करना हाइड्रोजन इस जगह जाएगा या इस जगह। तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड के इस साइड के अंदर C हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है और यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो ये आने वाला जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा, नेक्स्ट हाइड्रोजन जो होगा उस जगह जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। गिव नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कमिंग टू नेक्स्ट हाइड्रोजन ये आने वाला जो नेक्स्ट हाइड्रोजन जो होगा उस जगह जाएगा जहाँ पर पहले से ही हाइड्रोजन मैक्सिमम है। और ब्रोमीन उस जगह जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन मिनिमम है। तो आपके पास क्या जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH एंड CH3। तो देखिए बेटा यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन पहले से कम, जहाँ पर हाइड्रोजन पहले से मैक्सिमम है उस जगह हाइड्रोजन जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन मैक्सिमम है तो CH2 और ये ब्रोमीन किस जगह चला जाएगा, इस जगह। तो यहाँ पर आ गया ब्रोमीन, ये आपके पास क्या आ गया, एल्किल हैलाइड आ गया। आपके पास क्या आ गया, एल्किल हैलाइड आ गया। ओके, तो आपको क्या करना है कि जब भी आप कभी भी ये बाई एडिशन बाई हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्किन, हाइड्रोजन हैलाइड ऑन एल्किन बाई एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑफ एल्किन वाली जैसे ही रिएक्शन करें, मतलब कहने का मतलब एल्किन रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड वाली जैसे ही रिएक्शन करें, तो आपको सबसे पहले सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है। सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने के बाद में आपको ये चेक करना है कि क्लोरीन कौन सी जगह जाके कनेक्ट होगा, और क्लोरीन कौन सी जगह जाके कनेक्ट होगा, और वो क्लोरीन जैसे ही कनेक्ट हो जाए उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपको हाइड्रोजन कनेक्ट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल लीजिए, very important example, CH3 CH2 CH3 and double bond CH2 CH3 and CH3। ध्यान से देखेंगे इस एग्जाम्पल को, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3। ओके, रिएक्ट विद HCl देन गिव 2। तो देखो बेटा अब मैं क्या करता हूँ कि इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करता हूँ।
अब आप बोल रहे होंगे सर आपने इस साइड के अंदर ही बॉन्ड ब्रेक क्यों किया? क्या आपको पता है कि जब इस साइड के अंदर मैं बॉन्ड ब्रेक करता हूँ तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब इस साइड के अंदर मैं बॉन्ड ब्रेक करता हूँ इस साइड के अंदर तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और इस साइड के अंदर मैं बॉन्ड ब्रेक करूँगा तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो CH3 CH2 टू पॉसिबिलिटी आ गई आपके पास, CH3 एंड CH3 कार्बन पॉजिटिव एंड CH2 एंड CH3, एक तो पॉसिबिलिटी आ गई आपके पास, ठीक है। एक तो पॉसिबल कार्बोकेटाइन ये बन गया, और सेकंड कार्बोकेटाइन जो आपके पास बनेगा वो ये बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3 एंड CH2 पॉजिटिव CH3। एक कार्बोकेटाइन इस साइड के अंदर बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस साइड के अंदर बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये कर दिया मैंने पॉजिटिव, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये कर दिया मैंने नेगेटिव। ओके, तो ये पॉजिटिव कार्बोकेटाइन बन गया आपके पास CH3C CH2C CH3 CH2 CH3, ठीक है। ये कार्बोकेटाइन आपके पास बन गया। सॉरी बट ये तो 5 हो गए टोटल, 1 2 3 4 एंड 5 हो गए, 5 तो हो ही नहीं सकता, तो डबल बॉन्ड यहाँ करो आप इसको, सिंगल बॉन्ड। तो आपके पास यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक तो कार्बोकेटाइन ये बन गया आपके पास, और एक कार्बोकेटाइन आपके पास ये बनेगा, ठीक है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एक तो कार्बोकेटाइन ये बनेगा आपके पास, ठीक है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एक तो कार्बोकेटाइन ये बनेगा, और यहाँ यदि इस साइड के अंदर बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो कार्बोकेटाइन इस जगह आ जाएगा, ये कार्बोकेटाइन इस जगह पे आ गया। सो आप चेक करेंगे कि इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी है, इन दोनों में से स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी है। तो आप चेक करेंगे कि इस कार्बोकेटाइन के इस साइड के अंदर तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। ये कार्बोकेटाइन हो गया तो टोटल ये अल्फा कार्बन की साइड में 3 हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन 3, इस साइड के अंदर 0। इसमें चेक करेंगे तो यहाँ पर अल्फा कार्बन, इस कार्बोकेटाइन से फर्स्ट वाला जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन। स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा हो गई, इस वाले की ज़्यादा होगी, इस वाले की स्टेबिलिटी कम हो गई। तो ये आने वाला जो क्लोरीन जो है कहाँ जाके कनेक्ट होगा, यहाँ पर जाके कनेक्ट होगा, लेकिन अभी भी ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि इसके अंदर टोटोमेरिज्म होता है। टोटोमेरिज्म होने की वजह से होता क्या है कि ये पूरा का पूरा ये जो ग्रुप है, ये पूरा का पूरा ये जो ग्रुप है ये शिफ्ट हो जाएगा, किस साइड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बोकेटाइन के ऊपर जाके शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इस कार्बोकेटाइन के ऊपर जाके यहाँ से, और यहाँ से क्या करेगा, हाइड्रोजन इस साइड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास CH3 CH2 एंड CH3 एंड CH3। ये पूरा का पूरा एल्काइल ग्रुप यहाँ जाके शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन कौन सी साइड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ जाके शिफ्ट हो जाएगा, और आपके पास ये आ जाएगा, और इसके ऊपर ये आके आ गया आपके पास कार्बोकेटाइन आ गया, आपके पास ये आ जाएगा कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब इस कार्बोकेटाइन पे ऊपर क्या अटैक करेगा, क्लोरीन अटैक करेगा। क्लोरीन अटैक करवा दे तो आपके पास क्या जाएगा, CH3 एंड सिंगल बॉन्ड CH3 एंड Cl एंड CH3, ये आपके पास क्या जाएगा, एल्किल हैलाइड आ जाएगा। वैसे टफ हो सकता है क्वेश्चन ये, क्यों, क्योंकि आपके लेवल में है नहीं, बोर्ड क्लासेज में है नहीं है, इसलिए टफ हो सकता है। तो आप देख लेना, नहीं आता है तो मेरे से पूछ लीजिएगा दोबारा से, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr react with peroxide in presence of peroxide suppose that ROOR एल्किल peroxide आपके पास। तो एल्कीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन presence of peroxide, so the reaction give to according to anti-Markovnikov rule, एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो आपके पास ये जो कंपाउंड यदि इस टाइप से दे दिया जाए, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में दे दिया जाए हाइड्रोजन ब्रोमाइड, स्पेशल हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो रिएक्शन आपकी होगी एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल होता क्या है वो देखें। एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग
ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर आपके पास। एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि हाइड्रोजन उस जगह कनेक्ट करना है जहाँ पर हाइड्रोजन मिनिमम हो। तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। मार्कोनिकोव रूल क्या है? मार्कोनिकोव रूल ये है कि हाइड्रोजन उस जगह जाके कनेक्ट करना है जिस जगह हाइड्रोजन पहले से मैक्सिमम हो। उस एल्कीन के ऊपर पहले से ही हाइड्रोजन मैक्सिमम, लेकिन अपने को HBr और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में आपको एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाना है। एंटी मार्कोनिकोव रूल ये है कि आपको हाइड्रोजन उस जगह कनेक्ट करना है जहाँ पर हाइड्रोजन मिनिमम हो। तो इस एल्कीन के ऊपर देखो, यहाँ पर इस साइड के अंदर 1 हाइड्रोजन है और इस साइड के अंदर 2 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कौन सी जगह कनेक्ट हो जाएगा? जाके इस एल्कीन के इस जगह जाके कनेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा? RCH2 और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2। और ब्रोमीन किस जगह जाके कनेक्ट हो जाएगा? जहाँ पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाके क्या हो जाएगा? ब्रोमीन कनेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया? एल्किल ब्रोमाइड आ गया। ठीक है। एंटी मार्कोनिकोव रूल एकदम अपोजिट है किसका? मार्कोनिकोव रूल का। मार्कोनिकोव रूल तो ये कहता है कि हाइड्रोजन उस जगह जाके कनेक्ट होगा जहाँ पर हाइड्रोजन पहले से मैक्सिमम है। और एंटी मार्कोनिकोव रूल ये है कि एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन वहाँ जाके कनेक्ट होगा जहाँ हाइड्रोजन पहले से क्या है? कम है। उस एल्कीन के ऊपर जाके कनेक्ट होगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। ओके, लेकिन याद रखेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मैक्सिमम बार बोर्ड के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एल्कीन HBr इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड। ये HBr जो है ना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये ही पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। और किसी HCl, HF, HCl, इन HI इनके साथ पेरोक्साइड का कोई इफेक्ट नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ ही पेरोक्साइड का इफेक्ट होगा। बाकी HCl, HI इनके साथ किसी भी टाइप का कोई पेरोक्साइड का कोई इफेक्ट नहीं होता। सपोज दैट आपके पास क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए, CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX प्लस HBr पर ऑक्साइड प्लस HCl पर ऑक्साइड। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। सपोज दैट CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX प्लस HBr प्लस HCl। एक रिएक्शन तो आपके पास ये है कि बिना पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एक HBr के साथ पेरोक्साइड दे दिया और एक HCl के साथ पेरोक्साइड दे दिया। तो बेटा देखिए, HX है, पेरोक्साइड है नहीं, तो कौन सा रूल लगाएंगे? मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन किस जगह जाके कनेक्ट होगा? जहाँ पर हाइड्रोजन मैक्सिमम है। तो लगा दो CH3 ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के अंदर, CH2 1 हाइड्रोजन और शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा CH3। और हेलोजन कौन सी जगह चला जाएगा? इसके अपोजिट, यहाँ पर हेलोजन आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मेशन हो गया इस कंपाउंड का। लेकिन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसकी रिएक्शन इसके साथ करा दें, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करा दें, तो एंटी मार्कोनिकोव रूल हो जाएगा। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन कौन सी जगह जाके कनेक्ट होगा? जहाँ पहले से हाइड्रोजन क्या है? मिनिमम है। तो हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर हो जाएगा CH2। और Br कौन सी जगह चला जाएगा? इस जगह, तो आपके पास आ जाएगा Br। ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 CH2 एंड Br। नेक्स्ट है HCl पेरोक्साइड। अब देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एल्कीन HCl एंड पेरोक्साइड। अब आप देखेंगे कि HCl के ऊपर इस पेरोक्साइड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। HCl के ऊपर इस पेरोक्साइड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो HCl किस टाइप की रिएक्शन देगा? ओनली ऑफ ओनली अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। ये HCl किसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल ही चलेगा इसके अंदर। इस पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HCl का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो आपको एंटी मार्कोनिकोव रूल नहीं लगाना है। एंटी मार्कोनिकोव रूल तो सिर्फ और सिर्फ HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ही लगता है, सिर्फ और सिर्फ HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ही लगता है। HCl और यदि पेरोक्साइड दे दिया जाए आपको, तो सिर्फ और सिर्फ आपको HCl का रूल ओनली ऑफ ओनली मार्कोनिकोव रूल ही लगाना है। एंटी मार्कोनिकोव रूल ओनली ऑफ ओनली HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ही लगता है। बाकी अदर HF, HCl, HI की प्रेजेंस में पेरोक्साइड का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये जो रिएक्शन होगी ये सिर्फ और सिर्फ मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ही चलेगी। तो हाइड्रोजन कौन सी जगह जाके कनेक्ट होगा? जहाँ पर हाइड्रोजन मैक्सिमम है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? CH3 और यहाँ पर हेलोजन, और जहाँ पहले से हाइड्रोजन मैक्सिमम है, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन और शिफ्ट हो जाएगा, तो 3 हाइड्रोजन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। तो ये याद रखना है कि HCl का पेरोक्साइड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए आपको कौन सा रूल लगाना है? मार्कोनिकोव रूल ही लगाना है। मार्कोनिकोव रूल ही लगाना है। ओके, ठीक है।